Can you stand up for us, Devanshu? I'm ready, my love. नहीं दिख रहा है, What are कुछ you भी नहीं wearing? दिख रहा है. What are you wearing? Trouser. Pants you're wearing? You're wearing pants? नीचे अच्छा, नीचे SpongeBob वाली बॉक्सर्स हैं. Okay, welcome to the Quint, guys. Welcome. बोलो कुछ. Hello. कुछ तो बोलो. Hello. Thank you for having us, Avira. Thank you so much. Oh, I thought you were still introducing. इससे पहले let me tell everyone, इससे पहले हमें डांट पड़ी थी कि बीच में टोकना मत, क्योंकि एक बार हम टोक चुके थे हमारा इंट्रोडक्शन. 14 फेरे. Now tell me one thing. I saw the trailer. I had the privilege to see the trailer before everybody else. So it was extremely funny. So I'm just asking Vikrant, मतलब ऐसे चूज कर रहे हो फिल्म्स कि भाई यहाँ पे सीरियस होगा, यहाँ पे फनी होगा, यहाँ पे ये, मतलब हर एक रंग दिखा देता हूँ मैं एक साथ, सब एक ही साल में सब कुछ कर देता हूँ, बिकॉज विक्रांत तो सब जगह दिख रहा है. यार मैं क्या बोलूँगी, मतलब the credit goes to the producers who want to hire me, and all thanks to them and the writers and the directors. मेरे करियर में मैं जिस पोजीशन में इस वक्त हूँ, it is a very conscious decision कि मैं अलग-अलग genres की अलग-अलग kinds of characters करूँ, because monotony, stagnancy is something that really, like most of us, I believe, does not excite me. I want to wake up and I want to have a reason to, strive through that day and find something new and bring that thing with me home. तो मतलब बस यही एक conscious decision है. You're on mute. काफी conscious है, because we can see you like doing a lot of things and we are not complaining, believe me. हमें बड़ी खुशी है कि हमें विक्रांत दिख रहा है. Thank you. Okay, let's go to Devanshu. Devanshu, ये बताओ कि इन दोनों बंदों को कैसे कास्ट कर लिया, या were they your first priority or did you go to somebody else? मतलब हुआ क्या कास्टिंग में, क्या हुआ, गड़बड़ कैसे हो गई कास्टिंग में? ये गड़बड़ नहीं है मेरे ख्याल से, ये सबसे सटीक हुआ है मेरे लिए, because yes, obviously when you're writing you have so many people on your mind, and then the Like producers, who? the studio, ये सारी चीजें प्ले करती हैं आपके दिमाग में. Like who? And but then अरे What is this behavior? Buddy, Well- ये तो कभी नहीं बोला तूने मुझे क्या, कि कोई और भी था. अरे 3 I'm साल very odd. पहले क्या. Bye. Fight. ये तो मजे ही आ गए भाई, मेरे को तो खुशी हो रही, खुशी. They are bullying a young director. She is bullying a young director. देखो भैया. चलो कोई बात नहीं, देवांशु बोलो. So basically, when we started casting, I was very clear about one thing, that I would like to work with an actor who will test for me to play Aditi's part. I always wanted to work with Vikrant. I am absolutely in love with the Shutu character that he plays in Death in the Gunj. So when I got a chance to work with him, my only fear and my only concern was कि मुझे कितना ज़्यादा interact करने मिलेगा, and how much influence or how much control will I have on this actor. When it came to Kriti, मेरा deal बहुत simple था कि I want to screen test her and I want to work with her because Kriti is a trickier role. तो मुझे इसके लिए चाहिए था एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही ऐसी एक्टर जो कि जब करे तो ऐसा ना लगे कि वो सोच के आ रही है, रिहर्स करके आ रही है. That spontaneity work with her. तो मैंने तो ट्रेलर देखा एंड वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है. ओके, उनके लाइफ में तो बहुत कंफ्यूजन है, बट मुझे ये जानना है, हाउ डिड बोथ ऑफ यू इंट्रोड्यूस योर पार्टनर, लाइक यू बोथ हैव अ गर्लफ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड, हाउ डिड यू फर्स्ट इंट्रोड्यूस देम टू योर पेरेंट्स? विक्रांत, अगर तुमने मुझे मसाला नहीं दिया तो तुम देखो. यार मतलब ऐसे कोई इवेंट तो नहीं हुआ था. लाइक ऑल माय लाइफ, मतलब आई बिलीव आई एक्चुअली स्टार्टेड शेयरिंग my relationship status with my parents when I was in first year junior college. तो because मेरे खुद के पेरेंट्स जो हैं वो बॉम्बे से हैं, उनका एक्सपोजर अलग रहा है, वो भी मतलब काफी घूमे फिरे हैं. they are like, I'm really blessed with very very progressive parents. तो ऐसी कोई जवाबदारी कभी थी नहीं थी. मतलब it was understood
between them कि ठीक है, कि ये तो एक जेनेरिक चीज है, ये तो लाइफ में होनी है, they will have companions and partners in life. तो it would ऐसा कुछ कोई इवेंट नहीं होता था, तो मतलब if at all I was dating someone, महीने 2 महीने में घर वालों को पता चल जाता था and then they would be okay with it. तो ऐसा तो कुछ खास मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नहीं है मसाला मेरी लाइफ में यार, यार विक्रांत बड़ी बोरिंग प्लासिड सी यार, लाइफ है मेरी. यार हद हो गई। कृति अब तुम प्लीज कुछ करो और बताओ हमें, कुछ तो मसाला दो यार। मतलब सी आई लव ड्रामा। आई लव मेरा तो ड्रामा। बचपन से सपना रहा है कि मुझे भाग के शादी करनी है। अब भाग के शादी कब होती है ना? भाग के शादी कब होती है? स्लो मोशन कैमरा पे, जब माँ बाप को इशू है। अनफॉर्चुनेटली मेरे माँ बाप डोंट थिंक द सेम वे। मैं जिसको भी घर पे ले आऊं, दे आर द काइंड ऑफ पीपल हु से यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू मेक योर ओन डिसीजंस, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज. Having said that, my introduction was very funny, wherein there was a video call that was made and said, "ये लो इससे बात करो, ये मेरी girlfriend है." And all I said was, "नमस्ते आंटी, नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ." That's it. मतलब I didn't know what to say after. Awkward. Awkward to the power of 1000. Imagine कौन है ये बंदा? कॉल चल रही है, किसको कॉल कर रहा है? मम्मी को कॉल कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा सुनो, आपको किसी से मिलाना था, वो ये गर्लफ्रेंड है मेरी, और फोन दे दिया मुझे। ये मेरा इंट्रो था। शादी का सीन शूट करना इज लाइक, इट्स लाइक, it must be so much fun, or is it stressful? What is it like? Because there's so much taam-jam. I will pass this question on to Kriti, because जो वेदर में हमने शूट किया है, जो टाइमिंग्स पे हमने शूट किया है, वो आई थिंक शी इज द ओनली वन हु कैन एक्चुअली टेल यू कि कितना मजा आया शादी के सीक्वेंस शूट करने में. मतलब पहले तो मैं ये बता दूं कि जब हम शादी के सीन शूट कर रहे थे ना, देवांशु ने शेरवानी बनवाई थी पहनने के लिए ऑफ द स्क्रीन. Hello? What? So he had an outfit for every occasion that we shot in the film. आज संगीत है, संगीत का आउटफिट बना, मेहंदी है, मेहंदी का आउटफिट बना, शादी है, शादी की शेरवानी बनी, ऑफिस का सीन है, आई एम वेयरिंग दिस, कोई और सीन है, ट्रेंच कोट बनवा के आ गए अपना लखनऊ जाके, मतलब अलग ही सीन है बॉस का, बट फिर वो कहीं पे भी फिट इन हो जाते हैं. तो इज अ वेरी कूल पर्सन लाइक दैट. बट हैविंग सेड दैट, 2 बार दुल्हन बनना था इस मूवी में, 14 फेरे. जो हमारी मेन लाइक एक जो सेकंड शादी थी, उस टाइम पे वी वर शूटिंग इन लखनऊ एंड नाइट शूट हो रहा था. तो वो तो सुबह 2-3 बजे तक शूट नहीं, सुबह 6-7 बजे तक शूट चल रहा है, 2-3 डिग्री का टेम्परेचर होगा. अब बाकी कपड़ों के नीचे तो तुमने वार्मर्स पहन लिए, इधर तुम वार्मर्स पहन नहीं सकते, वो बैंड अलग बजी हुई है, ऊपर से हमारी ज्वेलरी ऊपर से लेके नीचे तक लते पते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू वेयर अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, इंडियन ब्राइड. बट आई थिंक फॉर मी द मोस्ट टैक्सिंग पार्ट वाज, ठंड वन ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जो मेहंदी लगानी थी ना इधर इधर तक रोज स्केच पेन के साथ. I used to sit like this for 3.5 hours while someone was drawing mehendi on my hand with a sketch pen, because we had other scenes to shoot in between. So I couldn't get the permanent mehendi done for 7 days in a row. I sat down for 3.5 hours. So overall, I would take 6 hours to get ready every day and then shoot overnight and then do the same thing again for 7 days. And at the end of the 7th day, Devanshu मेरे को कहता है, यार real mehendi लगा लेते. मतलब ये तो सीन है हमारी लाइफ के. बच्चे का दुख नहीं देखा क्या? इंसानियत भी कोई चीज तूने होती है. दुख देख लिया था 7 दिन का, उसके बाद बस ऐसी एवी एक हाँ, इंसर्ट पहले डाल दिया बोल देते. डायलॉग का भी, लेट्स बी फनी. You didn't get beaten up by her, वही बहुत है. हाँ, सुन लो मैं बहुत अच्छी हूँ. अब तुम शादी वो तो करोगी मारते कि नहीं आ करोगी? गई है. इसके बाद तुम रियल शादी करो कि आपकी ऐसी रजिस्ट्री मैरिज? ऑब्वियसली वो तो मैं करूंगी. दिस इज बिना बचपन का सपना कि मुझे शादी करनी और बच्चे पैदा करने. ये मेरा सीन है लाइफ का. 18 साल की उम्र में, I was 17 when Rajiv Menon, the filmmaker, the cinematographer, filmmaker, he had come over to my house. So I used to work a lot with his, with his company. तो मैंने काफी सारी एड शूट करी थी. तो वो राजीव सर had come home and we were sitting down at dinner one day and he said, तो क्या बनना है, क्या सोचा है, do you want to pursue acting, because I used to model and all. I was like, नहीं मुझे तो, मैं 18 होने की वेट कर रही हूँ, मम्मा को बोलूंगी शादी करा के बच्चे पैदा कर दो, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई का तो मुझे कोई शौक नहीं है. And that's when he told me, he said, no, I think you'll be an actor and I think you'll make a good actor.
and you should definitely consider it. And then I was like, nahi yaar, ye nahi ho payega. But then God had other plans. Okay, guys, it was lovely chatting with you guys. Thank you, Abira. Thank you, Abira. Thank you. Bye, Thank you, bye. Veera. Thank you.